आप में से कोई ऐसा है जिसको बचपन से लेकर आज तक कोई भी ऐसा एक एक्सपीरियंस आया हो जहां पे उसको गलत तरीके से छुआ गया हो? याद कीजिए, ऐसा कोई एक्सपीरियंस है? Look at the silence. Yeah? If I conduct a survey and a study in this hall, 50% of you will come up with one incidence of you having experienced sexual abuse. I can challenge that. I was sitting at the center. That sir came and he started talking. And he put his hands on my shoulder. And then बातें जैसे जैसे continue हो रही है, I saw the thumb moving and I saw his hands moving a little lower. It was weird, it was strange, it was, I don't have words to describe it. I was blank. And this happened like for what? Maybe 5 to 6 days. And I went through that dirty experience maybe thrice. And my spell of getting depressed began as a child. I felt helpless, Anshul. I mean, I was totally helpless. But I don't know why I didn't share it with my dad or with my mom. I should have done that, but I didn't. Okay, 3-1. My husband helped me a lot. Rohit helped me a lot, immensely. He was the first person with whom I shared this. And then he helped me a lot to heal. She realized that this is one thing which has impacted her mentally. It's not about the physical thing. And that's when we started thinking that, okay, this shouldn't happen with other kids. There needs to be a strong campaign, a focus on children where we teach them that this is wrong and how to stop it. And the first thing is going and sharing it with your parents. That's a very empowering thing. At least inform the parents. बच्चे कैसे फील करते हैं कि होता है ऐसा? तो बुरा है ना? It should not happen to any child, ना शोना? किसी भी व्यक्ति को, आपका वो कोई चाचा रहे, मामा रहे, सगा रहे, संबंधी रहे, पहचान वाला रहे, कोई भी आपके शरीर को हाथ नहीं लगाना चाहिए. खास करके 4 भाग हैं. दोनों आपके चेहरे को, आपकी छाती को, आपके दोनों पैरों के बीच का हिस्सा और आपकी सीट, किसी को भी हाथ लगाने नहीं देना है. और सुरक्षित. Children need to be taught. They need to be empowered. किसी को अपने होठों पे किस करने देना. ओके. किसी के भी सामने जाके कपड़े बदलना सेफ है या अनसेफ है? अगर कोई आपको गंदी मूवी बता रहा है, गंदे क्लिप्स बता रहा है मोबाइल पे. All our sessions include very relevant storytelling. Our major concentration is kids, then the parents, then the teachers, then the school, and then people around them. अगर ऐसा किसी भी बच्चे के साथ होता है तो आप नजदीक वाले पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं. अगर आपके साथ कहीं पे भी कहाँ पे भी ऐसा होता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? चिल्लाओगे. जोरात ओरडायचं. कसं ओरडणार? नाही म्हणा. चुप रहना घातक है आपके लिए. कोई भी चुप नहीं रहेगा, ठीक है? पावनी पावनी. I don't know, in India especially, anything related to sexuality, sexual sex, we just want to just brush it, under the carpet. Child sexual abuse
अब्यूज का सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि हम रिपोर्ट नहीं करते हैं। उसी वजह से जो ये करने वाला होता है उसकी हिम्मत दुगनी तिगुनी होते जाती है और उसको खुला मैदान मिलता है। सर ने अपनी ही 6 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया, बट वो यौन शोषण इस प्रकार का था जिसमें वो खुद के भाई को बुलाती थी उस 6 साल की बच्ची के साथ गलत हरकतें करने, और वो सिर्फ बैठ के देखती थी। मतलब सेक्सुअल अब्यूज़ सबके साथ होता है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो बुरा लगता है, वो सब तो बहुत जनरल है, एवरीडे रूटीन है ऑलमोस्ट हर फीमेल का। अभी भी ऐसी पब्लिक है, मेरे बुटीक में भी आती है लेडीज़, अच्छे फैमिली से अच्छे, अभी भी वो शौक है कि ऐसे होता है। They will never use the word child sexual abuse. They will always say yes, child abuse is a problem. बहुत लोगों ने ऐसे भी बोला है, ऐसे थोड़ी होता है, स्लम्स में ही होता है रे, अपने यहाँ नहीं होता है। लोग कॉज चेंज करने बोलते थे, ये क्या काम करने का है, कुछ अच्छा काम करो, पेड़ लगाओ। मैंने अब तक तो कैक्टस को मेरे सेकंड बेबी की तरह देखा है। So I feel more complete with this work, with Cactus volunteering. खुशी के लिए क्लैप। My life is changed 360 degree, what I can say in one line. तो हमने हमारे लिए फाइट करना चाहिए, सबसे पहले हमारे बॉडी के लिए। जिस बच्चों को अपने पेरेंट्स चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बता नहीं सकते, आज हम एटलीस्ट हमारे बच्चों को नुसी की वजह से वो बता पा रहे हैं। कैक्टस वॉरियर है हम सारे। We are getting adults who are coming and confessing to us that yes, this happened to me. क्या है आपकी स्टोरी? वो बोली मेरे अंकल, इवन मेरे डैड और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, मेरे पर्सनल पार्ट्स में कंटिन्यूअसली हाथ डालते रहते हैं। वो सिर्फ 3-4 साल की बच्ची है। Oh my God. He keeps touching my lips. Continuously, he's rubbing my lips. उस अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मेरा हाथ उनके, मैं उनको जानता था, and then he tried to pull me closer and he smooched me twice. मुझको यहाँ ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, मैंने पकड़ा और मैं बहुत घबरा गई, सक पका गई। He smooched my lips. मैंने मेरी मम्मा को ये वाक़या बताया, मगर मैंने ये नहीं बोला कि उन्होंने मुझे स्मूच किया है। पता नहीं इस बात ने मुझे कितना डिस्टर्ब किया होगा, कितने साल मैं उसके बारे में अकेली सोचती रही, बट मैंने वो बात किसी से शेयर नहीं की थी अब तक। मेरी फैमिली इतने फ्री होने के बावजूद भी मैंने अपनी मम्मी को अभी तक वो बात नहीं बताई। I did suffer. I am an adult. I am a survivor. There is life beyond abuse. There is tremendous support. 20,000 people from Sholapur walked on the roads on behalf of Cactus Foundation for the cause. You don't have to keep suffering in silence. इस विषय पर खुली बात, खुली चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बाल लैंगिक शोषण होता है उसके खिलाफ लोग अपनी चुप्पी तोड़े। थैंक यू। Children will really be heard, children will really be seen, and children will be taken seriously. You can be an agent of healing for your kids by talking to them, by letting them talk, by taking some action.